Hi friends, today I will start the practice set 2 of articles. Without delay, let's start now. Question number 1. Dash pupil should obey his teacher. Okay, here look at the word. Okay, pupil, and the word starts with consonant letter P. So answer will be what? Answer will be A. A pupil should obey his teacher. Clear? Next one. Dash horse is dash useful animal. Look at the word first. Horse. Okay. So word horse starts with consonant letter H. So answer will be what? In the first plant, A should be answer. A horse. Okay. And look at the second one. Okay. So useful here. U sound. That means a vowel sound is not produced. Instead, Y consonant sound is produced. Okay. So useful. Y. Y से प्रोनाउंस होता है. So Y क्या है? कंसोनेंट है. ओके. सो Y क्या है? कंसोनेंट लेटर है. सो यहाँ पे भी क्या होगा? आंसर विल बी A. Okay. A horse is a useful animal, not an useful animal. Clear? Next one. Question number 3. Take this medicine 3 times dash day. So ऑलरेडी मैंने क्लास में डिस्कस किया है. सो इंस्टेड ऑफ और वी कैन यूज द इंडेफिनिट आर्टिकल ए. ओके. सो टेक दिस मेडिसिन 3 टाइम्स ए डे. और के रिप्लेस कर हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? ए. क्लियर? नेक्स्ट वन. व्हाट डैश अगली साइट. ओके. सो इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आफ्टर व्हाट एंड हाउ. ओके. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मैंने पहले भी क्लास में डिस्कस किया है. ओके. सो एनी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट एंड हाउ इस टाइप के वर्ड के बाद जनरली इंडेफिनिट आर्टिकल यूज होता है. सो आंसर विल बी व्हाट ई अगली साइट. क्लियर? नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 5. कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया. हियर मार्क दिस सेंटेंस. ओके. टू डिफरेंट पर्सन्स. कालिदास 1 and here Shakespeare 2. They are two different persons. That means one is Indian dramatist and another one is British dramatist and poet. Clear? So यहाँ पे देखो कालिदास को क्या कहा जाता है? क्या टैग दिया गया? शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा गया है. किसको? कालिदास को. ओके. सो कालिदास एंड इक्वल टू शेक्सपियर. दैट मीन्स यहाँ पे कंपेयर किया जाता है, एक सिमिलरिटी किया जाता है. क्लियर? So one person compares to another one, and in that case, definite article the is used. Clear? So Kalidas is the Shakespeare of India. Answer will be what? Definite article the. Okay. So क्या हुआ है इसमें? कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया का टैग दिया है. ये पर्टिकुलर टैग कालिदास को दिया गया है. सो जब पर्टिकुलर किसी टैग और किसी डिफरेंट पर्सन को दिया जाता है, so in that case also definite article the is used. Clear? Next one. Dash milk is useful for small children. And remember friends, in this particular sentence milk is a uncountable noun and also milk is used in general sense, not in specific or particular sense. Okay. So यहाँ पे देखो milk यूजफुल सभी स्मॉल चिल्ड्रन के लिए, सभी छोटे बच्चों के लिए मिल्क यूजफुल होता है. यहाँ पे देखो मिल्क यहाँ पे क्या किस तरह यूज हुआ? जनरल सेंस में. सो ओमिशन ऑफ आर्टिकल हियर, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड. सो आंसर विल बी व्हाट? द सेंटेंस विल बी लाइक दिस. मिल्क इज यूजफुल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन. ओके. क्लियर? नेक्स्ट वन. He has gone to dash office. Okay. So office refers to a particular place of working. वर्किंग प्लेस को रिफर करता है ऑफिस कहने से. ओके. ऐसे ही ऑफिस हो गया, मार्केट हो गया. ओके. क्लियर? एंड स्टेशन हो गया. ये 3 different persons and generally in this particular words we can use the definite article the. Why? Because it refers to a particular place. Okay. So office कहने से particular place of work. Market particular place where we can buy and sell, and station also where the train stops and starts. Okay. So ये सब जो particular को refer करता है, so ये केस में हम यूज करते हैं definite article the को. Clear? So answer will be definite article the. He has gone to the office. Clear? Next one. Kindly return dash books when the speaker is aware.
which book he is referring to, then in that case also definite article the is used. जहाँ पे स्पीकर नोन होता है, स्पीकर किस बुक को रिटर्न मांग रहा है वो ऑलरेडी उस बुक को जानता है. ओके, सो क्या होगा इस पे, काइंडली रिटर्न द बुक्स. क्लियर. नेक्स्ट वन, डैश मैंगोज ऑन आवर ट्रीज आर नॉट येट राइप. जो मैंगो हमारी बगीचे में, हमारी गार्डन में, वो अभी तक राइप नहीं हुआ है. ओके, क्लियर. सो यहाँ पे क्या होगा, अगेन डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेटली कहा जाता है कि हमारी बगीचे में, ना कि अदर के बगीचे में, हमारी गार्डन में जो भी मैंगो ट्री है वो अभी तक राइप नहीं हुआ है. क्लियर. सो आंसर विल बी व्हाट, डेफिनेट आर्टिकल द. क्लियर. नेक्स्ट वन, डैश गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल. यहाँ पे देखो गोल्ड को, ये जो मेटल को पर्टिकुलर को, यह जनरल सेंस में, इन दिस जनरल सेंस में यूज हुआ है. ओके, सो क्या हो गया ये जनरल सेंस में यूज हुआ है. ओके, सो दैट मीन्स नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड हियर. जब भी जनरल सेंस में यूज होता है, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड हियर, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स. सो आंसर विल बी, सेंटेंस विल बी लाइक दैट, gold is a precious metal. Okay, not a gold, not an gold, not the gold. Clear. So next one, have you read all dash books? Have you read all the books? That means again the speaker is aware which books here he or she is referring to. So किस बुक को रिफर करता है, किस बुक को स्पीकर कहता है कि बुक्स पढ़ लिया है. ओके, सो यहाँ पे भी क्या होगा, डेफिनेट आर्टिकल द. Clear. So the answer will be like that. Have you read all the books? सभी बुक आपने पढ़ ली है. So ऐसे होगा आंसर. So next देखो, डैश काउज गिव अस मिल्क. यहाँ पे देखो काउज जनरल सेंस में यूज हुआ है, सभी गाय मिल्क देती है. ओके, ये जनरल सेंस में हो गया. So cows give us milk only, not the couch, not a couch, not an couch. Clear. So cows give us milk only. And look at the second, next number, 13 number. Okay, same cows is repeated here, but here definite article the is used. Why? Because the first one, look at the sentence number 12. Sentence number 12 में cows को general sense में use किया गया है, and whereas here sentence number 13 cows को specific particular case में refer किया गया है. Okay, so look at the sentence again. Cows of Ram. So that means राम के जो cows हैं वो ज़्यादा milk देते हैं. Clear? Give a lot of milk. Clear? So यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट सेंटेंस में नहीं आर्टिकल यूज होगा, कौन सी भी आर्टिकल नहीं यूज होगा. नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स. Whereas sentence number 13, the definite article used because it is referred to particular person and that is Ram. Okay, so राम के जो काउच हैं वो ज़्यादा मिल्क देते हैं. क्लियर. सो यहाँ पे स्पीकर पर्टिकुलर राम के काउच की बात कर, नर की जनरल काउच की बात कर रहा है. क्लियर. सो नेक्स्ट वन देखो, 14 नंबर, he is just honest. It's a very tricky question, so look at the sentence carefully. He is just honest, and here no an is used. Okay, so an यहाँ पे यूज नहीं होगा. So क्या यूज होगा यहाँ पे, he is honest only, न the, न an, and no a also. Okay, so क्योंकि यहाँ पे देखो an एक एडजेक्टिव को रिफर करता है. क्या रिफर करता है यहाँ पे, एडजेक्टिव को. whereas यहाँ पे जो यूज होगा मैन. ओके, क्लियर. दैट मीन्स ही इज जस्ट ऑनेस्ट मैन. हम वहाँ पर आंसर लिखेंगे क्या, ही इज एन ऑनेस्ट मैन. क्लियर. जब यहाँ पे मैन नहीं है, एनी नाउन नहीं है, हम क्या पढ़े हैं ऑलरेडी. सो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ए नाउन. यहाँ पे तो नाउन ही नहीं है. क्लियर. सो ये क्या हो गया, ऑनेस्ट क्या गया, एडजेक्टिव हो गया. That means a person's nature or quality. Okay, so he is just honest. That means he is honest only. No article required here. That means omission of articles here. Okay, so यहाँ पे कोई भी article नहीं यूज होगा. जब हम honest के बाद man लिखेंगे तब हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर an. He is an honest man. Clear दोस्तों. So today's last question, what will be? Okay.
dash honest men speak dash truth. Okay, and look at here, honest men, that means ये जनरल सेंस में यूज हुआ है. ये किस तरह यूज हुआ है? जनरल सेंस में. दैट मीन्स अगेन नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड. ओके, यहाँ पे देखो ऑनेस्ट मैन लिखा है. दैट मीन्स सभी ऑनेस्ट पर्सन को कहा गया है, ना कि सिंगल पर्सन रिक्वायर्ड. सिंगल पर्सन के बारे में नहीं किया गया है. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा? ओनली omission of articles, no article required, so sentence starts with honest men speak. यहाँ पे सेकेंड वन में डेफिनेट आर्टिकल द को रिप्लेस किया जाएगा, क्योंकि ट्रूथ रिफर्स टू ए स्पेसिफिक कंसेप्ट. ओके, ट्रूथ रिफर्स स्पेसिफिक कंसेप्ट. ये एक स्पेसिफिक कंसेप्ट है. ओके, सो जब स्पेसिफिक की बात आती है क्या यूज होता है? डेफिनेट आर्टिकल द. So answer will be like that. Honest men speak the truth. So कौन से लोग, कौन सी कैटेगरी के लोग ट्रूथ कहते हैं? ऑनेस्ट लोग. ओके, सो यहाँ पे ट्रूथ एक स्पेसिफिक कंसेप्ट हो गया, और ट्रूथ के बिफोर क्या यूज होगा? डेफिनेट आर्टिकल द. सो आंसर विल बी लाइक दैट, ऑनेस्ट मेन स्पीक द ट्रूथ. क्लियर? सो आज के लिए इतना ही. 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया मैंने. ओके, सो प्रैक्टिस सेट में, हर प्रैक्टिस सेट में 10 to 15 क्वेश्चन डिस्कस होगा. सो आज की क्लास में 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया. ओके, सो फिर मिलेंगे अगली क्लास से. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. ओके, स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल. ओके, बाय.